کر دے گا. لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ جوان تھا بوڑھا ہو گیا ہے اور دیکھو ابھی تک ایک ہی بات پکڑی ہے اور اب اس کے بچے ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, ہمارے بچوں کے بچے ہو گئے ہیں اور یہ ایک ہی بات کہتا جا رہا ہے زمین تباہ ہو جائے گی, زمین تباہ ہو جائے گی. زمین تو تباہ نہیں ہوتی, لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو زمین تباہ ہوگی. ایسی آج لوگ سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن جب وہ ہوگا تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہو گیا. اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں جینیسس چیپٹر 6 ورس 13 میں خدا نے سے بتایا. پھر اس کے بعد حزقیہ بادشاہ کو خدا نے پہلے سے بتا دیا کہ بابل میں تیری ساری دولت اور خزانہ لوٹ کے لے جائیں گے, اور اس طرح سے یہ بڑی تباہی کا خدا نے حزقیہ کو پہلے سے پیشن گوئی کی اور بتا دی خدا کے بندے نے. دوسرا سلاطین سیکنڈ کنگز, دوسرا سلاطین 20ویں باب کی 70ویں آیت اور 24ویں باب کی 13ویں آیت, چیپٹر 24 ورس 13. پھر اس کے بعد اور بہت سی میں چھوڑ رہا ہوں. پھر آخری بات کے جو ہے خداوند یسوع المسیح کی پیشن گوئی ہزاروں سال پہلے باغ عدن سے شروع ہو جاتی ہے کہ میں عورت کی نسل سے ایک کو لاؤں گا جو تیرے سر کو کچلے گا تو اس کی پاؤں کی ایڑی پر کاٹے گا. وہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر ایک شخص کو چنا جاتا ہے ابراہیم کو, اور پھر اس کی نسل کو, اور پھر یہودا کو, اور پھر داؤد کو, اور داؤد کی نسل سے ابن داؤد آتا ہے. اور سو ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں ہزاروں سال پیشتر, 4000 سال پہلے ہی خدا یسوع مسیح کے آنے سے پیشن گوئیاں شروع ہو گئی, اور اس طرح خدا بتاتا رہا. تو اس کا دوسرا جو لکھیں گے آپ ٹاپک وہ ہے فرشتے کی بات یہاں کی گئی ہے کہ کس کو بھیجا خدا نے یسوع مسیح کا مکاشفہ دینے کے لیے. کس کو بھیجا آسمان سے؟ فرشتے کو. فرشتہ یا فرشتے آپ لکھ سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ باغ عدن سے لے کے اب تک اور رہتی دنیا تک فرشتے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں زمین پہ, ایمانداروں کی زندگی میں, خوابوں میں, خیالوں میں, وحی میں, رویا میں, کلام میں, گیتوں میں, پیغامات میں, میٹنگز میں, عام جماعتیں جب بیٹھتی ہیں, پریئر گروپس میں, بائبل اسٹڈیز میں, ڈوگرا فرشتوں کی موجودگی کو دیکھا جانا اور محسوس کیا جاتا اور اس کی گواہی جو ہے دی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جو لاسٹ ٹائم ہوگا, اینڈ ٹائمنگز ہوں گے, اس میں فرشتوں کی جو خدمت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی, انکریز ہوگی. جو اینڈ ٹائمنگز ہیں ان میں آخری ایام میں فرشتوں کی جو خدمت ہے وہ بڑے وسیع پیمانے پہ ہوگی. مکاشفہ کی کتاب میں ہی صرف جو فرشتوں کی موجودگی ہے اس کا نام ہے وہ 62 دفعہ 62 ٹائمز جو ہے وہ آیا ہے. اور عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں انہیں خدمت گزار روحیں بھی کہا گیا ہے. اب ہم اس کتاب میں انٹر ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ 10 سینگ اور 10 سروں والے حیوان اور عجیب جسامت والی ٹڈیاں اور ان ساری چیزوں سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے. یہ ڈرنے والی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ یہ ایسے سمبلز ہیں, ایسی تصویریں ہیں جو ہمیں خدا کا بھید سمجھنے میں مدد دیں گی. ورس 2 میں لکھا ہے, کوئی پڑھ دے, صرف دوسری آیت. جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی, یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں, شہادت دی. آمین. سو یوحنا یہ بتاتا ہے کہ یہ مکاشفہ مجھے ایک فرشتے کے ذریعے پہنچا ہے, فرشتے کے ذریعے ملا ہے, اور یہ حقیقی اور سچا کلام ہے. اور دوسری بات وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب فرشتے نے یہ پیغام مجھ تک پہنچایا ہے تو اس میں کسی قسم کی ہنڈر نہیں ہے, اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی گئی.
जैसे दानियल की किताब में की गई थी। दानियल की किताब में क्या मुदाखलत की गई थी? किसी को याद हो, किसी बड़े को? जब उसने दुआ की तो कलाम में लिखा है जवाब आया, और फरिश्ता जब जवाब लेके आया तो जवाब लाने वाला फरिश्ता कौन सा होता है? मरियम के पास कौन सा आया? जब्राइल, शाबाश, वो पैगाम रसा फरिश्ता उसको समझा जाता है। सो जब्राइल को भेजा गया पैगाम लेके जाए, और कलाम में लिखा है कि 21 दिन तक किसके मौक्कल ने? फारस के मौक्कल ने लिखा है मुझे रोके रखा, और 21 दिन के बाद वो पहुंचा पैगाम लेके, और उसने कहा कि तेरी दुआ तो उसी रोज सुन ली गई थी, लेकिन फारस के मौक्कल ने 21 दिन तक मुझे रोके रखा, जब तक मिकाईल जो वॉरियर एंजल है वो नहीं आ गया, और उसने लड़ाई की, और अब मैं फारिग होके तो पहुंचा हूँ जवाब लेके तेरे पास। इस कहानी को पढ़ना चाहें तो दानियल 10 बाब की 13वीं और 14वीं आयत, जब पूरा 10 बाब आप पढ़ सकते हैं दानियल का। वर्स 3, तीसरी आयत को मेहरबानी से पढ़ दे। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन। 4 स्टेप्स हैं इसमें, और ये ऑलमोस्ट पूरे मुकाशफा की किताब में चलेंगे। पहली बात नबूवत की किताब, पहली बात नबूवत की किताब। नबूवत की किताब के लिए याद रखें कि ये नबूवत की किताब कौन सी है? मुकाशफा, जिसमें पेशन गोइयां की गई हैं आने वाले वक्त, आने वाले जमाने के ताल्लुक से। और इसका ताल्लुक याद रखें, मुकाशफा की किताब का ताल्लुक जो है वो यूहन्ना जिसने ये मुकाशफा लिखा उससे पहले वाले जमाने से नहीं है, यूहन्ना से ऑनवर्ड जमाने के साथ इस किताब का ताल्लुक है। सो मुकाशफा जो है बजाते खुद, मुकाशफा का क्या मतलब है? भेद, आने वाली बातें। सो मुकाशफा बजाते खुद मुकाशफा से थोड़ा मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि इसमें चंद एक बातें इंट्रोडक्शन की हैं, कलीसियाओं की हैं, उसके बाद रेवलेशन जो है वो हकीकी तौर पे शुरू होता है। सो इसकी पहली 8 आयात गालबन समझी जाती है कि ये इंट्रोडक्शन और सलाम दुआ अदाब के लिए है। इसके बाद रेवलेशन जहाँ पे यीशु मसीह का मुकाशफा से मिलता है तो वहां से वो शुरू होती है। नए अहदनामे की ये वाहिद किताब है जो पूरी की पूरी पेशन गोई है। मुकाशफा की किताब जो है नए अहदनामे की वाहिद बुक है, गोया पूरी बाइबल की मैं समझता हूँ वाहिद बुक है जो पूरी की पूरी पेशन गोइयों पे मुश्तमिल है। और इसका जो हल्का है, इसका जो दायरा है वो बहुत खुला है, वसी है, क्योंकि इसमें सारी ममलकतें और सारी हुकूमतें और रियासतें और कौमें और कबीले और उम्मतें सारा कुछ इसमें शामिल हो जाता है। इसलिए इसका जो अहाता है, जो इसका दायरा है वो बहुत बड़ा है जी। सो दूसरी बात, दूसरा स्टेप इसका, पहली बात हमने लिखी नबूवत की किताब, दूसरा बरकत का वादा। अभी आपने पढ़ा है कि इस किताब का क्या करने वाला? इस किताब का पढ़ने वाला और इसके अमल करने वाले मुबारक हैं। ये किताब जो है यहाँ पे उस वक्त में ये शख्सी स्टडी के लिए बात नहीं की जा रही। आप हैरान होंगे कि ये शख्सी स्टडी के लिए बात नहीं की जा रही, इसलिए क्योंकि उस वक्त तक ये किताब जो है काफी देर बाद तक भी हर एक की रीच में थी ही नहीं। हर एक को इस किताब तक पहुंचना हर एक के लिए मुमकिन नहीं। इसलिए यहां पे
पढ़ने वाले के लिए सीगा वाहिद सिंगुलर फॉर्म यूज की गई है और सुनने वालों के लिए प्लूरल फॉर्म जो है वो यूज की गई है। और अमल फिर सामने सुनने और पढ़ने वाले दोनों ने करना। सो ये एक जमात की सूरत में बात की गई कि पढ़ने वाला एक हो जिसके पास बुक है, वो पास्टर हो, लीडर हो या कोई हो, और वो पढ़े और बाकी बैठ के उसको सुने। और बहुत सी कलीसियाओं में ऐसा किया भी जाता है कि एक उठता है और वो एक बुक पढ़ता है और वो घंटा डेढ़ बैठ के उस किताब को सिर्फ सुनते हैं, कोई तफसीर नहीं की जाती, रेंज सिर्फ बाइबल पढ़ी जाती है और खास मुकाशफा की किताब। उन पढ़ने वालों को ये पता है पढ़ना कैसे है, कहाँ ठहरना है, कहाँ पे जोर देना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है। उनको ले रीडर्स जैसे लेमैन्स होते हैं कलीसिया में, खिदमत का काम अंजाम देने के लिए पादरी होते हैं, इस तरह लेमैन की जगह ले रीडर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है, जो कलीसियाओं में ये खिदमत जो है उसको अंजाम देते हैं। तीसरा स्टेप इसका मुबारकबादियां। जब हम मुबारकबादियों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान मत्ती 5 बाब पे चला जाता है, 8 मुबारकबादियों पे। लेकिन याद रखिए कि मुकाशफा की किताब में 7 मुबारकबादियां जो है वो भी शामिल है। मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में इसका जिक्र किया। और इस तीसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो ये मुकाशफा की 7 मुबारकबादियों में से पहली मुबारकबादी है। चौथी और आखिरी बात आज की कि वक्त नजदीक है। The time is short, time is very near। याद रखें कि खुदा का जो डिवाइन प्लान है, खुदा का जो डिवाइन कैलेंडर है, उसमें हर एक चीज जो है उसका एक सेट टाइम है, उसका एक वक्त मुकर्रर है और खुदा अपने वक्त के लिए बहुत पाबंद है। वो अपने वक्त से इधर उधर नहीं होता। तमाम पेशनगोइयां जो पुराने अहदनामे में की गई वो बड़े वक्त पे पूरी हुई और इसलिए वो कहता है कि क्योंकि वक्त नजदीक है इसलिए इस किताब को पढ़े और बाकी सुने और हर एक पढ़ सके तो और भी खूबसूरत, बड़ी, मुबारक और भरी बात है, और उस पर अमल करे तो ये मुबारक खाली है, क्योंकि एक बड़ा वाकया होने वाला है। और वो बड़ा वाकया क्या है कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु अल मसीह आ रहा है। खुदावंद के दिन की तरफ ये इशारा है कि खुदावंद आ रहा है। ये बड़ा वाकया है जो होने वाला है और इससे मुतल्लिक हम आइंदा जब हम 4 वर्ष से शुरू करेंगे तो सीखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए दुआ के लिए। मेरी दरख्वास्त है भाई बॉबी से, मेहरबानी से वो दुआ में। कदूस 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 जिंदा जलाली आसमानी बाप है, शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए खुदा जबकि हमने तेरे कलाम में से सीखा है खुदा कि वक्त नज़दीक है। और खुदा तेरे कलाम के भेदों को हम तेरे कलाम के भेदों पर हम खुदा सीख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं खुदा। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा, उनसे मिन्नत कर रहे हैं खुदा अपने कलाम का मुकाशफा हम पर ज़ाहिर कर रहे हैं खुदा, ताकि हम आने वाले वक्त को तमाम आयाम में जबकि वक्त नज़दीक है खुदा अपने आप को तेरी हुजूरी तेरी आमद दूसरी आमद के लिए तैयार कर सकें खुदा। और इस सारे वक्त के लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा। ये कलाम का तीसरा जो भी आज हमारे साथ शेयर किया गया हमारी ज़िंदगी में फलदार साबित हुआ खुदा। तेरे बंदा के लिए अपना मेहनत करता हूँ, अपने पासबान के लिए अपने बंदा को बड़ी कुदरत से इस्तेमाल करना है खुदा, उसको और ज़्यादा हिकमत समझ और दनाई अता करना, ताकि इसी तरह कलाम के भेदों को हम आपसे शेयर कर सकें खुदा। और अपनी मेहनत करता हूँ हर एक शख्स के लिए जो यहाँ पर मौजूद है खुदा, तेरा फजल वाला हाथ हम सब पर हुआ है खुदा, ताकि हम इसी तरह तेरे कलाम में तेरे नाम में बढ़ते चले जाएँ खुदा, और हमेशा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हमारे बाप